Hello students, welcome back to ISR Academy. In this module, we're talking about the chapter of control and coordination. In the previous modules, we finished about the forebrain, midbrain and hindbrain. We also have to talk about in today's module about the spinal cord. So last time हम लोगों ने पूरा का पूरा ब्रेन खत्म कर दिया है. अभी के लिए हम लोग जाएंगे आगे, which today we will finish the central nervous system. We'll also talk about the peripheral nervous system, and we'll also talk about the autonomic nervous system. So students, let's dive in deeper understanding the CNS or also the central nervous system. Now, right now what you have on the screen is the spinal cord. Now, when we students talk about the spinal cord, सबसे पहला जान लेना है कि भाई ये exactly है क्या. Okay, students, so let's talk about just a second. Okay, now let's talk about firstly about spinal cord. Okay, spinal cord जैसे मैंने बताया कि भाई वो CNS का एक extension है. ठीक है, it's extension of the CNS, which is, it is in short the extension of the medulla oblongata. Okay, so ये एक medulla oblongata का extension है. Medulla oblongata students क्या था? Medulla oblongata, can anybody try and recollect? Yes, absolutely. Medulla oblongata is the part of the hindbrain. So hindbrain का part था medulla oblongata, जो कि extension करेगा spinal cord को लेकर. Spinal cord का total length can be from 42 to 45 centimeters. Okay, and 2 to 2.5 centimeter in diameter. So basically ये कुछ dimensions रहे, 42 to 45 centimeters in length and 2 to 2.5 centimeters in diameter. Okay, now जो आपका spinal cord guys होता है ना, spinal cord, the spinal cord is going to end. The spinal cord ends at L1 or L2. स्टूडेंट्स L1 या L2 मतलब आपका लंबार वर्टिब्रे. वर्टिब्रे क्या है? वर्टिब्रे इज योर वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हो. तो वो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरा, see you have an entire region specific backbone, right? So of that you have individual small bones called as vertebrae. इसके अंदर you have certain groups of vertebrae which are called as a lumbar vertebrae. वो lumbar vertebrae total 5 है. और 5 के अंदर यू हैव जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट एंड्स एट L1 और L2. ठीक है, सो यू हैव L1 या L2 जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, एंड व्हाइल इट इज एंडिंग नो, जहां पे वो टर्मिनल पार्ट पे जैसे वो कंक्लूड कर देता है. सो मान लो कि इट इज स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इट इज स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस. सो एट L1 एंड L2 इट इज गोइंग टू टेपर लाइक दिस, ऐसा. ठीक है, इट इज गोइंग टू टेपर लाइक दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द L1 एंड L2, व्हिच मींस एट द टर्मिनल पार्ट. ओके, जब मैं टर्मिनल पार्ट के बारे में बात करता हूं, टर्मिनल पार्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड्स लाइक अ कोन शेप. ठीक है, कोन दिख रहा है, वो कोन जैसा एंड हो रहा है, कोन जैसा एंड हो रहा है. एंड दिस कोन शेप्ड एंडिंग इज व्हाट वी कॉल एज कोनस मेड्यूलैरिस. ओके स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज कोनस मेड्यूलैरिस. इसको आप कोनस मेड्यूलैरिस बोलते हैं. और साथ ही साथ एक बार स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 पे खत्म हो गया, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो वंस द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एज थ्रेड. ओके, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज phylum terminale. Okay, it is called as phylum terminale. So students, I hope you are able to understand जो मैं यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहा हूँ. So you have different anatomy. Okay, so आपने dimensions देख लिया है, इसका पार्ट एंड किस तरीके से हो रहा है वो भी देख लिया है. ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं कि एक चीज आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है गाइस, कि when we talk about spinal cord, no, the TS, okay, the TS of the spinal cord. When we look at the TS of spinal cord, it is bit of important. TS of spinal cord को जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे you will find 2 regions. ठीक है, आपको ना TS के अंदर 2 regions देखने को मिल सकते हैं. ये 2 regions कौन से हैं? One will be the gray matter
ये आपने ब्रेन में भी देखा हुआ है। ओके, अनदर इज समथिंग कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर। ओके, सो वन इज ग्रे मैटर, अनदर इज व्हाइट मैटर। इस तरीके से दो है। बस इतना आपको जानना है गाइज यहाँ पे कि जो व्हाइट मैटर है ना, व्हाइट मैटर इट विल बी इन स्पाइनल कॉर्ड, इट विल बी आउटसाइड। ओके, कैन यू सी दिस पार्ट आउटसाइड, एंड जो आपका ग्रे मैटर है दिस विल बी इनसाइड। ओके, ब्रेन में एग्जैक्टली उल्टा है। ब्रेन के अंदर जो आपका ग्रे मैटर है वो बाहर होता है और व्हाइट मैटर जो होता है वो अंदर होता है। बट यहाँ पे व्हाइट मैटर अपन ने बाहर कर दिया है और ग्रे मैटर अंदर हो गया है। ओके, इसके अंदर का ये जो ग्रे मैटर आपको देख रहे हैं, ग्रे मैटर, this gray matter is in a shape of H. So it is H shaped. ठीक है, it is H shaped, and H shaped gray matter appears to be like a butterfly. Okay, so it is butterfly shaped or H shaped gray matter जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. This entire region that I'm talking about, this is H. ठीक है, ये एक H shaped gray matter present है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये इट शोज टू इंपॉर्टेंट स्वेलिंग्स. स्वेलिंग मतलब समझते हो आप, ऐसा कर्व आता है ना. ओके, एक ऐसा कर्व आता है, फिर एक ऐसा कर्व आता है. ऐसा आपकी कमर अगर आप देखोगे तो यहाँ से बल्ज है, एक गर्दन में एक बल्ज है ऐसा. ओके, तो इसको स्वेलिंग बोलते हैं, स्वेलिंग. सो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड इट शोज टू टाइप्स ऑफ स्वेलिंग. ओके, नाम याद रखना है. वन इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल स्वेलिंग. ओके, अनदर इज कॉल्ड एज द लंबार स्वेलिंग. तो सर्वाइकल स्वेलिंग हो सकता है एंड लंबार स्वेलिंग हो सकता है. ऐसे दो रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंटायर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. ठीक है, ये तो बाहर से हम लोगों ने देख लिया. अभी अपन जाएंगे अंदर एंड अभी अपन समझते हैं हाउ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज. ठीक है, इंटरनली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड, सो इंटरनली क्या है पता है आपका, जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. ठीक है, दो अलग अलग मैटर है ना, दो अलग अलग डिपोजिशंस है. तो व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर इज डिवाइडेड इनटू something called as roots and something called as funiculus. Okay, ऐसा दो, roots and funiculus, roots and funiculus. Can you see this gray root? ठीक है, एंड ये जो व्हाइट वाला रीजन है, पूरा व्हाइट वाला, इट इज डिवाइडेड इनटू फ्यूनिक्यूलस. अभी कैसा है गाइस कि आपका जो रूट होगा ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूट जो है ना, रूट जो कि ग्रे मैटर का एक्सटेंशन है, रूट ये खुद तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला यू हैव द डोर्सल रूट. ओके, देन द सेकंड यू हैव द वेंट्रल रूट. ओके, एंड देन यू हैव द थर्ड विच इज कॉल्ड एज द लैटरल रूट. कुछ इस तरीके से. ठीक है, डोर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल. डोर्सल, वेंट्रल एंड यहाँ पे आता है लैटरल. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो रूट को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. उसके बाद सिमिलरली जब मैं अपन फ्यूनिक्यूलस के बारे में बात करता हूँ, फ्यूनिक्यूलस भी एक साइड में तीन है. जैसे रूट्स देखो एक साइड में तीन है, यहाँ पे तीन है, डोर्सल है, वेंट्रल है, लैटरल है. यहाँ पे भी डोर्सल है, लैटरल है, वेंट्रल है. वैसे फ्यूनिक्यूलस भी तीन. फ्यूनिक्यूलस वापस इट इज डिवाइडेड इनटू डोर्सल फ्यूनिक्यूलस. Okay, then it is divided into ventral funiculus, then it is divided into lateral funiculus. So white matter 6 divisions में पड़ जाता है and collectively उसको अपन ने क्या बोला, उसको अपन ने बोला है funiculus. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. So this funiculus is extremely important because I'll tell you spinal cord का basic function क्या है. स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके जो इम्पल्सेस होंगे, सिग्नल होगा, ब्रेन के अंदर जाने का एक ही जरिया है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड.
So spinal cord will maintain the communication of to and fro from the brain to the organs, from the organs to the brain. So it is a kind of a highway. Okay, it's a signaling highway wherein impulses can flow inwards or impulses can flow outwards. And there's only one way by which these impulses can enter into is nothing but the spinal cord. So when we talk about spinal cord categorically, spinal cord is very, very important to let the brain know what is happening in your body. एंड बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही पता चल सकता है, विच मीन्स स्पाइनल कॉर्ड विल ऑल्सो सर्टेन टाइप्स ऑफ नर्व्स. सो अलग अलग टाइप के नर्व्स हो सकते हैं. वो नर्व्स कौन से होंगे? सो वी हैव दिस अंडरस्टैंड, हमारे पास दो मेजर नर्व्स है. ओके, स्पाइनल कॉर्ड के पास हमारे पास दो मेजर नर्व्स है. ठीक है, दो मेजर नर्व्स है. एक सबसे पहला एक नर्व है जो इज कॉल्ड एज द एफरेंट नर्व. ओके, एक एफरेंट नर्व है. देन दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो इफरेंट नर्व. देखो एफरेंट क्या है? इनकमिंग. एफरेंट का मतलब इनकमिंग है, ठीक है, एंड इफरेंट का मतलब आउटगोइंग होता है. सो जो भी सिग्नल्स ब्रेन के अंदर जाने हैं दैट विल बी कमिंग थ्रू द एफरेंट नर्व फाइबर. ओके, एंड जो भी सिग्नल एग्जिट कर देने हैं दे विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम द इफरेंट नर्व फाइबर. So basically when we talk about afferent nerve fiber or efferent nerve fibers, they will allow the to and fro movement across the spinal cord and will take the impulses to the brain. ठीक है, आई होप ये बेटर वे में समझ में आपको आ रहा है एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर. साथ ही साथ एक चीज आपको और एक याद रखना है. स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन है ना, सर्कुलर स्पाइनल कॉर्ड दो रीजन आएंगे. ठीक है, एक रीजन होता है जिसको आप बोलते हो एंटीरियर रीजन, okay, or the ventral region, and then you have the posterior region or the dorsal region. Okay, for this matter in this case this is the dorsal region, this is the ventral region ना, ventral region. हमेशा याद रखना impulses कभी भी dorsal route से enter करेंगी, ventral route से exit करेंगी. Dorsal route से signals will enter into the spinal cord and they will exit from the ventral route of the spinal cord. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब पीछे से सिग्नल्स डॉर्सल से आएंगी एंड वेंट्रल से एग्जिट कर देंगे. ये आपको चीज इंपॉर्टेंटली बच्चों याद रखना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स? ओके, हमको जरा इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि भाई हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर क्यों रहे हैं एंड क्या सिग्निफिकेंस इसके बारे में अपने को है. ठीक है, when we talk about functions of the spinal cord, just a second. Yeah, so when we talk about the functions, तो थोड़ा सा functions के बारे में देख लेंगे क्या क्या हो सकता है. सबसे पहला it is a highway for to and fro movement of impulse. Okay, it's a highway for to and fro movement of impulse. Impulses को move करने में मदद करता है. It is also a very important component of something called as reflex action. समझ में आ रहा है? अभी तुमको एक चीज में कंफ्यूजन शायद आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में फर्क क्या है. वर्टिब्रल कॉलम इज रीढ़ की हड्डी गाइस. ठीक है, रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा जगह होता है जिसको आप सेंट्रल कैनाल बोलते हो. इस सेंट्रल कैनाल के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड फिटेड है. ठीक है, सो यू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. यू शुड अंडरस्टैंड दैट, विच मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट फ्रीली प्रेजेंट. इट इज नॉट फ्रीली प्रेजेंट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इसको प्रोटेक्शन दिया गया है और ये प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड किया? दिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम व्हिच एंश्योर्स दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को मैंने मेनिंजेस करके कुछ तो बताया था. मेनिंजेस हैज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर एंड मेनिंजेस. ये तीन लेयर्स आजू बाजू में ब्रेन के कवर करते हैं. सेम चीज आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है. तो इवन स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय दीज थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेनिंजेस. ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड को लेकर. एंड
एक चीज आपको समझना है कि मैंने यहाँ पे कोई टर्म बात किया, देखिए ठीक है, इधर मैंने कुछ ये कुछ बोला है, अभी इसके बारे में क्या आपको पता है, कभी बचपन में क्या आपने सुना है, सुना भी होगा, चलो अपन इसको भी डिटेल में लेते हैं, समथिंग कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. Okay, students, reflex action. Now, what is reflex action? So when somebody asks you what is reflex action, so reflex action is nothing but it is a sudden, it is which is rapid, it is spontaneous, okay? It is spontaneous, it is sudden, rapid, spontaneous, and involuntary response. Involuntary response to external stimulus. ओके देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या, इट इज वेरी वेरी क्विक, काफी ज्यादा फास्ट है, स्पॉन्टेनियस मतलब फटाक से हो जाएगा, आपको चमकेगा भी नहीं आपने क्या किया करके, एंड इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी मीनिंग इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. So such actions which are not under your control, which are very, very fast acting, which are rapid in nature, is nothing but the reflex action. And reflex actions are coordinated by none other than spinal cord. Spinal cord is going to ensure that spinal cord executes these actions which needs to be taken much, much faster. देखो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ना गाइज आपके पास ये भी होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, बट क्रेनियल रिफ्लेक्स मतलब क्या है कि जो इंपल्सेस आपके ना ब्रेन में जा रहे हैं, जो ब्रेन के पाथवे में एंटर कर रहे हैं. अभी दिक्कत क्या होता है कि जब ब्रेन के पाथवे में कोई सिग्नल एंटर करता है, इट विल गो अंडर द साइकिल ऑफ प्रोसेसिंग. सो इन सिंपल टर्म्स इट जस्ट प्रोसेसेस इटसेल्फ. तो प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा, टाइम जाने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स आएगा नहीं, और सेम आपको रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड इनिशिएट करता है, इसमें आपको टाइम का बहुत ज्यादा डेफिसिट है. तो टाइम का डेफिसिट होने के कारण आपको यहाँ पे रिएक्शन टाइम क्या करना पड़ेगा, काफी फास्ट करना पड़ेगा. You should understand that. And when the response time becomes faster, only then the execution which happens is involuntary. No, wherein you don't get time to do anything. सोचने का मौका नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो एक्शंस काफी ज्यादा तुरंत हो गए हैं. इसी का बचपन में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, टचिंग अ हॉट कॉफी मग, और पासिंग योर फिंगर थ्रू द कैंडल, और गलती से अगर आपने नियर द इम्पोर्टेंट जो फ्लेम रहता है उस फ्लेम के आसपास अगर आपने उंगली टच की तो फिर आपको फटाक से विड्रॉल रिफ्लेक्स आता था. ये सारे एक्शंस ही तो स्पाइनल कॉर्ड के हैं. क्या आपने सोचा, देखो ना गरम कॉफी का मग है, आपने उसको टच किया, डिड यू रियली थिंक अबाउट इट कि ओके आई हैव टू विड्रॉ माय हैंड और नो, नो यू डिडंट डू दैट. Once you touched, you were unaware of it, you didn't knew that the coffee mug is hot, you tried and touched it, and oh, to your surprise, you just got burnt. But before you get completely roasted, okay, you quickly withdrew your hand, and once you withdrawn your hand, this action which is happening around is nothing but the spinal reflex action which is initiated by the spinal cord. So I think so by and large when we put things into perspective, reflex actions are involuntary nature, sudden, quick है. ओके किसने इनिशिएट किया, तो अवर स्पाइनल कॉर्ड ने इनिशिएट कर दिया है. देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो स्पाइनल कॉर्ड इज समव्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है. ओके एंड यही रिफ्लेक्स एक्शंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी अपने को चर्चा करना है. ठीक है, सो यू कैन हैव सी अंडरस्टैंड, यू कैन हैव टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. ओके अलग अलग टाइप हो सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के. जैसे फॉर एग्जांपल अपन सबसे पहला देख लेते हैं, द वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज द कंडीशन रिफ्लेक्स. कंडीशन रिफ्लेक्स स्टूडेंट्स, कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब ये, कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब ये कि इट रिक्वायर्स previous exposure. Okay, it requires previous exposure or it requires previous experience. Okay, exposure या फिर experience लगता है इस केस में. एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको फटाक से समझ में आ जाएगा. डांसिंग,
then you can have driving, then you can have स्विमिंग। ये तीनों जो एक्शंस मैंने आपको बताए, ये तीनों एक्शन जो मैंने आपको बताए, वो एक्शंस क्या आप बचपन से सीख के आ रहे हो? पैदा हो गए फटाफट मेरे को आता है गाड़ी चलाने को ना, मतलब इसको सीखना पड़ेगा, सीखोगे याद रहेगा, पैटर्न बनेगा, सीख लोगे और कर लोगे। बट सिंपली अगर डायरेक्टली चलाना शुरू कर दिया गाड़ी, डायरेक्टली पानी में कूद गए ये सोचकर कि मेरे को स्विमिंग आता है, बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूशन आने वाला। मतलब कंडीशन रिफ्लेक्सेस रिक्वायर्स कंडीशन टू बी इन प्लेस बिफोर यू रियली थिंक अबाउट दोज एक्शंस। उस एक्शंस के बारे में सोचने से पहले उस कंडीशंस में आपको होना बहुत जरूरी है गाइस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पहले टाइप का। अभी दूसरा टाइप का देखिए। The second type का reflex is called as the unconditioned reflex। ठीक है, सेकेंड टाइप का is called as unconditioned reflex। unconditioned reflex मतलब क्या कि जहां पे there is no previous exposure or experience required। ठीक है, नो प्रीवियस एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, ठीक है, ये आपको सिखाना पड़ता है नहीं। देन स्नीजिंग, ओके, देन से फॉर एग्जाम्पल कॉफिंग। समझ में आ रहा है? तो एक तो कंडीशन रिफ्लेक्स हो सकता है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स हो सकता है, ये दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देन और टाइप से दो टाइप का क्लासिफिकेशन बन सकता है। ठीक है, तो देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑफ reflex action based on synapse। synapse पता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यस, बराबर। तो यहां पे भी दो बंटवारे आते हैं। वन इज कॉल्ड एज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ओके, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में गाइस बात नहीं करने वाले, बस इतना याद रखना कि सिंगल सिनेप्स है, इंटर न्यूरॉन नहीं है बीच में, एसोसिएशन न्यूरॉन नहीं है, इट्स अ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज द पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ओके, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, इसके अंदर यू कैन टेक डांसिंग और ड्राइविंग। यहाँ पे एक से ज्यादा सिनेप्स इन्वॉल्व होंगे और आपको यहाँ पे इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन लगने वाला है। सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। एंड साथ ही साथ इसका फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या, देखो मैं रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ना उसके बारे में भी पता रहे। देखिए, अभी होता कुछ इस तरीके से, तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम रखा हुआ है। ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, इसके ना 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, 3 पार्ट्स बोल सकते हो, 3 पार्ट्स बोल सकते हो। सबसे पहला होता है रैमस डॉर्सैलिस। ओके, सबसे पहला होगा रैमस डॉर्सैलिस। सेकेंड होगा विच इज कॉल्ड एज रैमस ventralis। okay, and the third will be ramus communicans। okay, so इसका मैं चाहूंगा कि आप जरा डायग्राम में जरा ध्यान दीजिए कि एक कंपोनेंट के एक तरफ आपके पास है डॉर्सैलिस, वेंट्रालिस एंड कम्युनिकेंस। ठीक है, तीनों का तीनों आपको वो देखो, डॉर्सल रैमस,
दिख रहा है वहां पे वेंट्रल रैमस, एंड दोनों जहां पे मिल रहे हैं दैट इज कम्युनिकेंस। डॉर्सैलिस जो होता है, डॉर्सैलिस इट कैन टेक द इम्पल्स फ्रॉम स्किन एंड टू मसल। ओके, डॉर्सैलिस जो होता है, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, सिग्नल जो करेगा इट विल टेक फ्रॉम स्किन और मसल फ्रॉम द डॉर्सल साइड। ओके, मैंने अभी तुमको कुछ ही वक्त पहले बताया था कि इनकमिंग सिग्नल्स जो होती है, इनकमिंग सिग्नल्स, वो इनकमिंग सिग्नल्स कैसे रहते हैं, दे आर ऑलवेज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम विच साइड, दे आर कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल साइड। और जो वेंट्रालिस होता है, वेंट्रालिस इट कैन सप्लाई द ऑर्गन्स एंड मसल। ओके, इट कैन सप्लाई द ऑर्गन्स एंड muscles from ventral and lateral side। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है? देखो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेंस क्या कर रहा है, कम्युनिकेंस, ये कम्युनिकेंस जो है एक टाइप का कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बट अभी जरा देखिए ये कैसे चलता है। सो मान लो तुम्हारे पास एक स्टिमुलस है, ठीक है, एक स्टिमुलस है, और ये स्टिमुलस अभी के लिए मान के चलेंगे एक्सटर्नल है। ठीक है, स्टिमुलस है, एक्सटर्नल है। ये स्टिमुलस विल बी पिक्ड अप बाय द सेंसरी न्यूरॉन। ओके, इट विल बी पिक्ड अप बाय द सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो रहेगा, सेंसरी न्यूरॉन इट विल टेक द इम्पल्स। ओके, so it will take the impulse, it will go into the dorsal root. So sensory neuron is going to enter into the dorsal root, dorsal root में enter किया, dorsal root से फिर आपके पास बीच में एक न्यूरॉन आएगा जिस न्यूरॉन का नाम होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद क्या, बराबर इंटर न्यूरॉन से फिर वेंट्रल रूट पे आएगा इम्पल्स, वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से कहां पे, वेंट्रल रूट से कहां पे, वेंट्रल रूट से इट विल कम टू द मोटर न्यूरॉन, एंड मोटर न्यूरॉन के बाद देन देयर विल बी, इट विल कम टू द इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, एंड मोस्ट सर्टनली वो जनरली एक तो मसल्स होंगे या फिर स्किन होगा। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द फ्लो ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का फ्लो, कि किस तरीके से इम्पल्स फ्लो होता है इन केस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। देखिए इसमें कुछ डाउट रहेगा तो देखिए जरा रिवाइंड करिए, एक बार समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खत्म होता है, और इसी तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखा अपन ने, ब्रेन पूरा देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड अभी देख लिया। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स में भी डेफिनेटली बता सकते हैं, और इन जनरल ऑल्सो अगर आपको कहीं पे कुछ ना कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और पहले वाले मॉड्यूल्स देखिए, ये मॉड्यूल्स में आने से पहले। ठीक है, तो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैं यहां पे ही लिख रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट इट इज एसोसिएशन, it is the association of spinal nerves and association of cranial nerves। तो स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स का एसोसिएशन दोनों एक साथ रहेगा, उसको आप बोलते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अभी देखिए जरा इसको समझिए, मैं आगे जाने से पहले बात समझना आपको। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ नर्व्स। ओके, ये आपको जानना जरूरी है और एक बार अच्छे से समझ लेना, गौर से समझना। 3 टाइप के नर्व्स आपको आपके सिस्टम में देखने को मिलते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहला होता है जिसको आप बोलते हो सेंसरी नर्व। ओके, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व स्टूडेंट्स क्या करता है पता है, इट
carries the impulse. Okay, it is going to carry the impulse from sensory ना, sense करेगा, मतलब from skin or from organs to the CNS, inward pathway ना, इनवर्ड पाथवे, सिग्नल लिया स्किन से, मसल से, ऑर्गन से और सीएनएस में पुश कर दिया, सेंसरी। ठीक है, दूसरा वाला जो एक है द सेकेंड टाइप विल बी, यस, सेकेंड टाइप विल बी द मोटर नर्व। ठीक है भैया, मोटर नर्व क्या करता है? मोटर नर्व विल कैरी द impulse, it will carry the impulse from CNS to either skin or organs, outward pathway, outward। तो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। भैया तीसरा देखिए, तीसरा इज कॉल्ड एज interneuron or also called as association neuron। ये association neuron या interneuron जो होता है, it is present between sensory and motor neuron। तो ये ना सेंसरी न्यूरॉन के बीच में और मोटर न्यूरॉन के बीचों बीच होता है, एक टाइप का प्रोसेसिंग समझ लीजिए। ठीक है, एक टाइप का प्रोसेसिंग समझ लीजिए कि इसको इस तरीके से अपन ने किया है। ये तीन टाइप के नर्व्स है गाइस, ये तीन टाइप के नर्व्स है जो आपको पता होने जरूरी है बिफोर आई टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो अभी आगे जाए। तो अभी अपन सबसे पहले जंप करेंगे टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व जो होती है ना, क्रेनियल नर्व समझना बात को, क्रेनियल नर्व जो होती है दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ओके, दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से अराइज होती है, ब्रेन से चालू होती है। एंड टोटल देयर आर 12 पेयर्स। ठीक है, टोटल देयर आर 12 पेयर्स। 12 क्रेनियल नर्व्स जो आपके सामने मेंशन की हुई है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। सबसे पहला क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स वी हैव इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी। olfactory है, olfactory is a region which starts like the origin is the olfactory lobe which is here, तो it is responsible for sensation of smell। कहाँ पे रहेगा? So it will be present in olfactory epithelium which is present in the nasal cavity। sensory nature है, function will be smell, detection of smell। ठीक है, second nerve is called as the optic। optic मतलब vision। ठीक है, optic मतलब vision। So vision के लिए responsible है the origin optic lobe which is present in the brain। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे रहेगा? इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द रेटिना ऑफ द आई। विल टॉक अबाउट इट। रेटिना एक छोटा सा टिश्यू है, इंटरनल टिश्यू आई के अंदर। नेचर अगेन सेंसरी टाइप का नर्व है एंड फंक्शन विल बी साइट और विजन। ठीक है, थर्ड विल बी ऑक्यूलोमोटर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट इन द आई एंड 4 मसल्स ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। Nature will be motor and functions will be movements of the eyeball, iris, lens and eyelids. Okay, then you have the trochlear nerve which is present on the floor of the midbrain. Where are they distributing to? They're present in the eye, superior oblique muscles of the eyeball. So in short, the movement of the eyeball. Nature will be motor, function will be rotation of the eyeball. Okay, then you have trigeminal. Origin will be pons varoli which is the part of the hindbrain. Distribution covers head, face, jaws and teeth. Nature would be sensory and also nature would be motor which is a type of a mixed nerve. So you have the forehead covers sensory, scalp, upper eyelid, side of the nose and the teeth. Motor ke liye you have the movement of the tongue, jaw muscles which are responsible for chewing. Abducens, origin start from pons, covers the external rectus muscle of the eyeball, which is rectus are the muscles which help in the movement of the eyeball. So kind of you don't want to really understand this in detail. So right now I'm just brushing it through. जो important है वो ये है, ये है, ये है, ये भी इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये है और वो है। ठीक है, so nature would be motor,
Then you have helps in the rotation of the eyeball. Facial starts from pons, varoli, covers anterior 2/3 of the tongue, muscles of the face, neck, and responsible for chewing. Again, anterior 2/3 of the part is sensory, responsible for detection of taste. Muscles for the face, neck, and chewing is motor, responsible for facial expressions, chewing, and movement of the neck. Auditory, obviously audition, hearing. Okay. Origin is pons, distribution covers the organs of the cortea and the cochlea. Cochlea is very important organ in the ear, responsible for hearing. We'll talk about it. Then you have the semicircular canals. Nature would be sensory, responsible for hearing and equilibrium. Equilibrium meaning balance. Okay. Then you have the glossopharyngeal nerve, which is present the side of the medulla. Then distribution covers 1/3 of the tongue, which is sensory, responsible for taste and touch. Then you have the mucous membrane and the muscles of the pharynx, both of which are motor in nature and responsible for movements, especially in swallowing, which is conducted and guarded by the pharynx. Then you have the vagus. Vagus is also called the pneumogastric nerve, covers the origin is the side of the medulla, and also covers the distribution is in the muscles of the pharynx. You have vocal cords, lungs, heart, esophagus, stomach, and intestine. इसमें से it is again a type of a mixed nerve, can help in vocal cord, lungs, respiratory reflexes, peristaltic movement, speech, swallowing, secretion of gastric glands, slow downing heart, and all of that. All these functions will be there. Then the spinal accessory, origin will be side of the medulla. Distribution of the muscles of the palate, upper जो आपका buccal cavity का ऊपर वाला हिस्सा palate. Larynx, sound box or the voice box, vocal cords, neck and shoulder. Again a type of a motor nerve. Then you have muscles, covers muscles of the pharynx, larynx, neck, and responsible for shoulder movements. Okay. Hypoglossal, again origin is side of the medulla. Distribution goes with the muscle of the tongue and neck. The type of nerve it is, which is a motor nerve, and then the function would be movement of the tongue. I know it's tad bit difficult, but as I said you can just have a glance over the number, the first, second, third, and the fourth. नेम ओके कौन से टाइप का नाम क्या भाई वो तो पता होना चाहिए. देन उसके बाद नेचर सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, क्या है, एंड देन फंक्शन. एक एक फंक्शन एटलीस्ट याद रखे, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा. अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ. अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क ऑन डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन. Okay, chalo, this is your cranial nerves, guys. We are now jumping to the next concept, which is spinal nerves. Spinal nerves are a bit easy, nothing to worry at all. So आपके पास spinal nerves है. Okay, spinal nerves and आने वाले spinal nerves. देखिए cranial nerves कहाँ से originate हो रहे थे? Cranial nerves were originating from the brain. Spinal nerves are going to originate. They are going to originate from स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड. एंड आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाले टोटल कितने हैं? तो टोटल वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स 5 डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका भी डिविजन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. नंबर 1 इज सर्वाइकल. ओके. Number 2 is thoracic. Number 3 is lumbar. Number 4 is sacral, and number 5 is coccygeal. ठीक है, इस तरीके से 5 डिविजन्स है. इसको सिंपल फॉर्म में बात करेंगे तो सर्वाइकल कवर्स द नेक पार्ट, thoracic covers the chest region or the thorax. ठीक है, lumbar is present जहां पे abdomen है, sacral is your pelvis, and coccygeal is nothing but the tailbone. ठीक है, ऐसे डिविजन्स. अभी कितने नर्व्स कहाँ पे है देखिए. सर्वाइकल में टोटल आपके पास है 8. ठीक है, thorax में you have total 12, lumbar you have 5, sacral you have 5, coccygeal you have 1. कितना बन रहा है? टोटल 31 pairs.
ठीक है, इजी इतना ही भाई, और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज यहाँ से पूछते हैं, वो लोग बोलेंगे कि बताइए हमको स्पाइनल फॉर्मूला बताइए, मैं यहाँ पे लिख दूँ, नहीं चलो यहाँ पे लिखता हूँ। वो लोग पूछेंगे बताइए भैया स्पाइनल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, स्पाइनल फॉर्मूला, तो आपको स्पाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। स्पाइनल फॉर्मूला सर्वाइकल के आपके पास 8 है, थोरैसिक के 12 है, लंबार का 5 है, सेक्रल का 5 है, ऑक्सीजल का 1 है। दिस इज योर स्पाइनल फॉर्मूला, समझे, खत्म। दिस फिनिशेस विद योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सी सो इजी, सेंट्रल को इतना वक्त लग गया, पेरिफेरल फटाक से खत्म हो गया, बिकॉज आपके सिलेबस में उसके बारे में 2 ही चीजें बात की हैं। वन इज अबाउट द नर्व्स, दैट इज द क्रेनियल नर्व्स, अनदर इज द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, चलो देन गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, सुप्रीमली important, which is the correct, it's autonomic nervous system. Fantastic, it's autonomic nervous system. So now we are talking about autonomic nervous system. ठीक है, ऑटोनॉमिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पीएनएस का ही पार्ट है, थोड़ा सा अलग अपन बात करते हैं। इट इज एक्चुअली, एएनएस इज अ सेंटर फॉर regulation of visceral organs. visceral मतलब internal organs, ठीक है, internal organs इसके पास पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल होता है। इनके पास अलग अलग टाइप के गैंग्लियाज होते हैं, so they contains different types of ganglions जो होती हैं, these are collection of neurons. okay, सबसे पहला you have pre-ganglionic nerve fiber. ठीक है, second you have what is called as post ganglionic nerve fiber. okay, pre-ganglionic nerve fiber and post ganglionic nerve fiber. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में, गैंग्लियन के बारे में आपको कितना पता है? कैन यू रिकलेक्ट व्हाट इज गैंग्लियन? यस, कलेक्शन है, डेफिनेटली सो बराबर है, वो एग्जैक्ट राइट है। साथ ही साथ एएनएस जो है, एएनएस बहुत सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दैट इट कंट्रोल्स मेजर इन वॉलेंटरी एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज रहेंगे, इसका कंट्रोल इसके पास है। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 टाइप्स। तो यू हैव 2 टाइप्स यहाँ पे। वन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। से 2। ठीक है, दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला बात करना है sympathetic nervous system. okay, now we are talking about sympathetic nervous system. देखो, sympathetic nervous system जो होता है ना, it is also called as thoracolumbar outflow. ओके, thoracolumbar outflow बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, इसके पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हो गए। ओके, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर विल बी शॉर्ट, ओके, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर विल बी लॉन्ग। इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है। सिंपैथेटिक इज एन एक्टिवेटिंग सिस्टम, सो एक्टिवेट करता है।
तो इनके पास कुछ स्पेशल नर्व फाइबर्स रहेंगे, okay, special nerve fibers, and the special nerve fibers are called as adrenergic fibers. ठीक है, these special nerve fibers are called as adrenergic fibers. adrenergic fiber हमेशा याद रखना है, बहुत ही एक्टिवेटिंग फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे स्टिमुलेटिंग फाइबर्स होते हैं। दो हॉर्मोन्स भाई इन्वॉल्व है, टू हॉर्मोन्स, कोई बता सकता है? देखो दो हॉर्मोन्स है, एक होता है जिसको आप बोलते हो एड्रेनलिन, एक होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। सो यू हैव एड्रेनलिन हार्मोन, यू हैव नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, दोनों के दोनों हमेशा याद रखना है गाइस, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स आर द एक्टिवेटिंग हार्मोन्स, मतलब आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देते, सिस्टम को एक्टिवेट करते किस तरीके से? तो जनरली स्पीकिंग आपके जो ये दो हार्मोन्स होते हैं नॉर एड एंड एड, बोथ कैन शो समथिंग कॉल्ड एज 3F इफेक्ट। 3F दिखाते हैं। अब ये 3F क्या क्या है? 3F में सबसे पहला है फाइट, ठीक है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लाइट, then you have something called as fright. Fight मारना, flight भागना, fright डरना, ठीक है? तीन अलग अलग एक्शंस ये रेगुलेट एंड मॉड्यूलेट करता है, आपके सिस्टम का एक्टिवेटिंग पार्ट है ये, मतलब आपके सिस्टम्स को, आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दे रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, एक्सेप्ट यहाँ पे दो इफेक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेंगे, मतलब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहेगा ना गाइस, इट विल शो नो इफेक्ट, इट विल शो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट से बेटर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई इट हैज reduced effects on two things. One is peristalsis, another is micturition. Micturition मतलब यूरिनेशन। सो ये दो इफेक्ट्स अगर छोड़ दिया तो बाकी हर जगह पे एक्टिवेशन रहेगा इसका। सो दिस इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विच इज योर parasympathetic nervous system. Second is parasympathetic nervous system. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, अभी देखो गाइस, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। थोरैकोलम्बार क्या था? थोरैकोलम्बार वाज सिंपैथेटिक, इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। अभी देखो भाई, तुम्हारा ये एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये एक्टिवेटिंग है ना, आपको एक्टिवेट करता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मैं सारे फीचर्स बताऊंगा आपको, बट ये एक्टिवेट कर दे रहा है। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, वहां पे शॉर्ट पे, यहाँ पे लॉन्ग रहेंगे, तो मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ओके। यहाँ पे दे विल बी long, post ganglionic nerve fibers, okay, they will be short, okay। इनके पास भी नर्व फाइबर्स रहेंगे, okay, इनके पास भी नर्व फाइबर्स होंगे, और इन नर्व फाइबर्स का नाम होता है कोलिनर्जिक फाइबर्स, ओके, कोलिनर्जिक फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनर्जिक फाइबर्स। कोलिनर्जिक फाइबर, एक ही हार्मोन इन्वॉल्व, there is a hormone involved here, and this hormone is called as acetylcholine. It is also the neurotransmitter. Yes students, fantastic, acetylcholine है, और ये एक टाइप का इनहिबिटिंग सिस्टम है, एब्सोल्युटली राइट। ये हार्मोन एक टाइप का इनहिबिटिंग सिस्टम देता है, इनहिबिटिंग इफेक्ट देता है, सो इट हैज द इनहिबिटिंग इफेक्ट, आपके सिस्टम्स पे इनहिबिट करता है, सब चीज को रिलैक्स एंड काम डाउन करता है, एक्सेप्ट टू, ओके, मतलब इधर देयर विल बी
increased function of two things. Number one, पेरिस्टालसिस. देखो पेरिस्टालसिस सिंपैथेटिक में इनहिबिट हुआ था एंड मिक्ट्यूरेशन भी सिंपैथेटिक में इनहिबिट हुआ था. यहाँ पे दोनों का फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा. सो इन अ वे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जरा आप नोटिस कर रहे हो ऑपोजिट है. When both the systems work in opposite direction or opposite fashion, they are called as antagonistic, which means that sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system are opposite in nature. ठीक है, they are opposite in function, opposite in nature, and इसकी वजह से उनको antagonistic बोलते हैं. कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं ताकि आपको समझ पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने हार्ट रेट के बारे में बात किया, हार्ट रेट के बारे में देखो सिंपैथेटिक में देयर विल बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट रेट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हार्ट रेट सिंपैथेटिक में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था कि सिंपैथेटिक के अंदर एक्टिवेटिंग सिस्टम है तो हार्ट रेट सिंपैथेटिक में बढ़ गया, पैरासिम्पैथेटिक में घट गया. ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स का बात किया जाए, ब्लड वेसल्स, सो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे रहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्शन आएगा. कंस्ट्रिक्शन मतलब रेड्यूस्ड साइज रेड्यूस्ड. ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देयर विल बी डायलेशन, मतलब साइज उसका बढ़ गया. एक ये हो सकता है. दूसरा देखो और एक चीज, ब्लड प्रेशर. कंस्ट्रिक्शन कर दिया ना तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? एसएनएस में बीपी वुड इंक्रीज. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बीपी वुड डिक्रीज. देखो गाइस समझ में आ रहा है क्या? मैं जरा साइड में हट रहा हूँ. तो हार्ट रेट हो गया, ब्लड वेसल्स का बात किया, ब्लड प्रेशर का बात किया. देन और एक कर लेते हैं, प्यूपिल. आई के बीच में जो आपका काला डॉट होता है प्यूपिल, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आपका जो प्यूपिल रहेगा, प्यूपिल इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देयर विल बी डायलेशन मतलब वाइडन हो जाएगा, लाइट और ज्यादा आ पाए. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में और 3-4 एग्जांपल्स है, मैं आपको 4 बताए तो आइडिया लग जाए आपको कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दिस इज अगेन डन विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. समझ में आ रहा है? तो अपन ने सीएनएस भी खत्म किया, अपन ने पीएनएस भी खत्म किया, अपन ने एएनएस भी खत्म कर दिया. पूरा नर्वस सिस्टम खत्म. कितना इजी था, फटाफट तो हो गया है. क्या ज्यादा कोई टेंशन का बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं. एकदम फ्लो में आपका चीजें होते जाएगा, उसका कोई भी चिंता नहीं करना है. सो आपका एएनएस खत्म गाइस. अभी एक छोटा सा पार्ट बचता है आपके टेक्स्ट बुक में, विच आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स, जिसको मैं अभी फटाक से आपको कवर करना चाहूंगा. रिसेप्टर्स ऐसे टाइप के कुछ सेंसेशंस होती हैं जो आपको बताते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है. रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और ब्रेन को रिले कर देते हैं, ब्रेन को इम्पल्स या सिग्नल पास करा देते हैं. तो सिमिलरली आपके पास कुछ रिसेप्टर्स है. सो वी हैव a group of receptors called as the exterior receptors. Exterior receptors are generally responsible for detection of any kind of stimulus which is outside the body. ठीक है, so उसमें से mechanoreceptors, location will be touch corpuscles in the skin, which is present on the surface of the skin. Then responsible for sensation of touch. It can be tango receptor. Tango can be pressure. Then tactile can be touch. ठीक है, so and have that. Thermoreceptors का location again will be skin. Thermo, heat or cold, temperature. So there are frigido for cold and heat receptors for warmth. Chemoreceptors can be present in your tongue and nose, that is nasal mucosa, which is tongue. Function can be gustatoreceptors, responsible for taste detection, and olfactoreceptors, responsible for detection of smell. Fantastic. Then you have the statoacoustic receptors. Statoacoustic, balance, present in the internal ear. Responsible for hearing, present in the cochlea. And then you have semicircular canals which are responsible for maintenance of balance and equilibrium. इसके बारे में अपने को अभी आने वाले मॉड्यूल में डिस्कस करना है. Then your photoreceptors, photo light, retina, rods, black and white image, dim light vision, cones, colored and bright light vision. So ये सारे चीजों को ये receptors को डिटेक्ट करते हैं, सारे बाहर का sensations को डिटेक्ट कर रहे हैं. Then you have the group of receptors called as interior receptors. Interior receptors can locate and detect the changes which are happening inside your body. ठीक है,
So proprioceptors can be present in the muscle and the joint. Function can be pain, tension, and vibrations. Enteroreceptors will be present in the visceral organs. Hunger, thirst, pain, temperature, pH, osmotic changes, and etc. Then you have the baroreceptors, which are present in the wall of the carotid artery. Carotid artery is present here. यहाँ पे अगर आप touch करेंगे तो आपको ऐसा कुछ feel होगा, artery beat कर रहा है. That is carotid artery. It can detect changes in the blood pressure. देखिए जरा ये चार्ट को अगर आपको कोई रेफरेंस के लिए चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्नैपशॉट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. ओके, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट द receptors. So I guess this module we should halt here. We can take the eye and the ear in the next module. So मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मॉड्यूल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नर्वस पार्ट है, मतलब इसके अंदर बचा क्या है, 2 सेंसरी ऑर्गन बचे, वो 2 सेंसरी ऑर्गन में नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करके अपन दोनों को कंबाइन कर देंगे. फिर प्रॉपरली नर्वस खत्म. फिर उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में वी कैन स्टार्ट विद द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर अ बिट लाइटर स्टफ, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड देयर. मेजर पार्ट जो अपना कॉम्प्लिकेटेड वाला था वो अपन ने फिनिश कर दिया है. आई होप सो ये मॉड्यूल समझा होगा गाइस. उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. आई होप यू आर वेरी वेल used to now that the speed that I have. And if at all you need any kind of changes, any kind of revisions, any kind of modifications, please let us know. Please let me know on the same video down in the comment section. We'll definitely bring about some changes, and for sure I think so, because at the end of the day ultimate aim हमारा यही है कि you know the best of the best content should reach to you, and that is our utmost priority. And therefore with that being said, I think so this module covers all the major parts with regards to the nervous system. मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस के मॉड्यूल्स आप देखिए, उसको समझिए, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछिए, बताइए, फीडबैक शेयर करिए. एंड अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा, द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग इन across the domains of 12th science of Maharashtra State Board, we are covering physics, we are covering chemistry, we are covering mathematics and biology, and also with an added subject of geography. So I hope so it's a complete approach towards your academic success, and I'm very sure that if you just stick to us, stick with us for the rest of the months and coming board exams, I'm very, very sure that you'll be able to grasp it well clear. You'll be able to score well in your exams, and with that I think so that's what even we want as faculties and you want as students. So I don't think so there's any kind of disparity in terms of the view that we share. With this, if you like our efforts, please do consider subscribing our YouTube channel, which is YSR Academy. अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना. कुछ कमेंट्स रहेंगे, फीडबैक रहेंगे, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा. उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस रहेंगे डेफिनेटली हम लोग उसको कर सकते हैं. एंड और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ एट ऑल यू आर सीइंग दिस वीडियो, वाचिंग दिस वीडियो, and if you like our content, please just subscribe that button, put the bell icon on, and also give it the video links to your friends who are in need. We are providing all the content, the entire content of the Maharashtra 12th State Board for free on the YouTube channel. So I think it's like the best that we have right now and the best that you can get right now. So yeah, so let's stop this module. I'll see you in the next module, guys. Till then, take care and stay safe.